Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fishaholic. Today I am going to discuss about notes of breeding and hatchery management of finfish and shellfish from PC Thomas book. Guys, these notes are very important for your ICR fisheries PG exam and other fisheries related exam. Before starting a video, it's a request, if you are new to this channel, please do subscribe to my channel and like, share and comment on my videos. And don't forget to subscribe to my Telegram channel, as these notes will be uploaded on the Telegram after the video. So let's start the video. First we will see the seed production of major carp. So guys, these all the notes and the data which is present in these notes are from the PC Thomas books. So first we will see the total aquaculture production of the major carp is 33.31 million tons, excluding the aquatic plants. So in this, the aquatic plants are not included, so only the fishes, which is major carp, is included. So production is 33.31 million tons. Carps and other cyprinids are 14.90 million tons. So carps plus other cyprinids is 14.90 million ton, which is 44.7%, and freshwater alone is 18.5 million tons, which is 80%. So as you can see, freshwater is alone contributing about 80% of the total. Okay guys, next is Chinese carps. Are the, as you can see, these are the names or the scientific names of Chinese carps which are cultured in aquaculture system in India. So silver carp, Hypothalamichthys mollitrix, grass carp, Ctenopharyngodon edla, bighead carp, then black carp, then mud carp. So keep in mind guys, many times the question on the scientific names are asked in different exams. Next is the our Indo-Gangetic riverine system fishes. So Katla, Rohu and Mrigal, these are the Indo-Gangetic riverine system. The question will be there as Indo-Gangetic riverine system fishes are. So these three fishes are Indo-Gangetic riverine fishes. Next is Cyprinus carpio is a native of Eastern Europe. So Cyprinus carpio जो है हमारी common carp is a native of Eastern Europe. Keep in mind. Then the silver barb is Puntius gonortius, is from Thailand species, which form more than 82% of total carp production. So keep in mind, silver barb जो है वो हमारी 82% टोटल कार्प्स प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है. IMCs जो होती हैं वो हमारी बाइसेक्सुअल होती हैं, यानी कि हेट्रोसेक्सुअल, यानी कि ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट इन वन फिश. मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फिशेस. Okay guys, then the pectoral fin of male rough dorsal surface longer than female, and female dorsal side of pectoral fin is smooth. So हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द मेल एंड द फीमेल ब्रूड? जब हम ब्रूड को सिलेक्ट करते हैं तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? फ्रॉम द पेक्टोरल फिन. सो जो पेक्टोरल फिन ऑफ मेल्स होती हैं वो हमारी होती है रफ सरफेस होती है, जो डॉर्सल सरफेस होती है वो काफ़ी रफ होती है और लॉन्गर होती है देन फीमेल, वेर एज female has a dorsal side of pectoral fin very smooth. Okay guys, the next is carps of 2 years and 5 years preferred for breeding. So 2+ year and 5 year जो ब्रूडर्स होती हैं, जो एक बार मतलब ऐसा माना जाता है कि जो कार्प्स एक बार ब्रूड कर चुकी होती है उनको अच्छा ब्रूडर माना जाता है. हमारा जो नेचुरल वाटर्स में जो अच्छे ब्रूडर्स होते हैं वो 2+ और 5 ईयर्स में प्रेफर किए जाते हैं. स्पॉनिंग ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून मंथ. सो हमारा स्पॉनिंग, एज यू ऑल नो, हमारा जो स्पॉनिंग पीरियड होता है वो जून टू अगस्त होता है एंड सितंबर तक हमारा चलता है, यानी कि हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो मंथ्स होते हैं उसमें हमारा ब्रीडिंग इनमें होती है. दे स्पॉन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग आवर्स टिल द इवनिंग. सो जैसे कि आप जानते हैं अर्ली मॉर्निंग से लेकर हमारा टिल द इवनिंग हमारी इसमें स्पॉनिंग होती है. फिकेंडिटी हमारी आप देख सकते हैं कतला में 16,000 से लेकर हमारी 2 लाख पर केजी तक हम एवरेज ले सकते हैं. देन लेबिरोहिता इज़ अ 3,45,500 टू 3,82,000 तक हमारी पर केजी बॉडी वेट तक हमारा फिकेंडिटी होती है. मृगल में
39,000, देन 1 लाख टू 1,87,000 तक हमारी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फेकेंडिटी सबसे ज़्यादा हमारी इन तीनों में किस में होती है, तो आप कह सकते हैं कि लेबियो रोहिता में हमारी सबसे ज़्यादा होती है, 3 लाख per kg body weight. Labio rohita has a greater fecundity, as you have already seen from other two, than the Cerinus mrigla. Largest size होती है Cerinus mrigla की, and the number of eggs वो release करती है is 20,000 numbers per liter of water में release करती है वो, and the smallest is of Labio rohita, which is only 3,000 in नंबर। यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, आप देख लीजिएगा, 3,000 है, ये होना चाहिए यहाँ पे नंबर्स, विच इज़ स्मॉलेस्ट 3,000 नंबर ऑफ एग्स पर लीटर ऑफ वाटर, एंड द कतला इज़ 2,500 एग्स पर 1 लीटर ऑफ वाटर हार्डन। देन हमारा स्पॉनिंग कैसे है, तो ये हमारी प्रोसेस होती है। जो माइक्रोपाइल हमारा प्रेजेंट होता है हमारे oocytes में, दिस इज़ द शेप ऑफ oocyte, एंड हेयर द माइक्रोपाइल ओपनिंग इज देयर फ्रॉम विच द sperm enters in the oocytes for the fertilization process. So it is a narrow opening present in the oocyte envelope, which permits the entry of sperm into the cytoplasm of egg. The chorion is फ्रेजाइल इन एन अनफर्टिलाइज एग। याद रखिएगा गाइस, जो हमारी कोरियन होती है वो अनफर्टिलाइज एग्स में कैसी होती है, फ्रेजाइल होती है, वेयर एज चेंजेस इनटू द टफ स्ट्रक्चर थ्रू वाटर हार्डनिंग। जब हमारी वाटर हार्डनिंग होगी, जब हमारा जो एग है वो कांटेक्ट में आएगा वाटर के, और वो वाटर हार्डनिंग होगी, तो जो हमारी कोरियन जो हमारी लेयर है वो क्या होगी, हार्डन हो जाएगी। ओके गाइस, वैसे वो हमारी कैसी होती है, सॉफ्ट और फ्रेजाइल होती है अनफर्टिलाइज एग्स में। फर्टिलाइज एग्स स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग वाटर थ्रू oocyte सरफेस इनटू द पेरीवेटलाइन स्पेस। जो हमारा oocytes है और जो ये हमारी पेरीवेटलाइन स्पेस होती है, यहाँ पे हमारा वाटर क्या होता है, स्टोर होने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है oocyte। एज पेरीवेटलाइन स्पेस गेट्स फिल्ड विद द वाटर एंड कोलाइड, स्वेलिंग ऑफ द oocyte टेक प्लेस। स्वेलिंग होती है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर हार्डनिंग। एग अटेन साइज ऑफ 4 to 5 times देयर नॉर्मल साइज। सो 4 to 5 टाइम वो बिगर हो जाते हैं, यानी कि उनका जो साइज़ होता है वो बिगर हो जाता है ड्यू टू द वाटर हार्डनिंग प्रोसेस। एंड वाटर हार्डनिंग प्रोसेस आप समझ ही गए हैं कि पेरीवेटलाइन स्पेस में जब हमारा वाटर आ जाएगा और वो कोलाइडल एक फॉर्म करेगा और स्वेलिंग होगी जब हमारी oocyte की, तो वो हमारा क्या होगा, वाटर हार्डनिंग प्रोसेस होगा, विच कैन मेक द साइज ऑफ oocyte 4 to 5 times bigger. Then the cleavage starts about 39 to 45 minutes after the fertilization, not complete or holistic. So not complete जब होगा तो हमारा holoblastic होगा, and जब हमारा पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो वो मीरोब्लास्टिक होगा। यानी कि 39 to 49 मिनट्स में वो फर्टिलाइजेशन यानी कि क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। बट जो हमारा फर्टिलाइजेशन है, क्लीवेज है, वो कंप्लीट नहीं होता हमेशा, वो होलोब्लास्टिक होता है, विच मीन्स नॉट कम्प्लीटली। Then the gastrulation process occurs. This is a 3 process such as invagination, inclutation and epiboli. So these are the 3 process. You will study these 3 process in anatomy. So here I am not telling you about these 3 process. Only these 3 process are included. This you have to keep in mind. It results in embryo having a 3 germ cells. So ectoderm, endoderm and mesoderm. Then ectoderm give rise to epidermis like enamel of teeth, olfactory epithelium, lens of eye, inner ear, brain, spinal cord and optic nerves. So keep in mind ectoderm हमारा क्या मतलब किन organs का origin जो है हमारा ectoderm से होता है. So epidermis like enamel of teeth, olfactory epithelium, lens of eye, inner eye, these are all the organs which are originated from ectoderm. Then the mesoderm, 3-part dorsal epimere, middle mesomere and the ventral hypomere. So these are the 3 parts which originate from the mesoderm. Then the epimere is divided into a somites, which is 3 parts
dermatome, middle myotome and the sclerotome. These are the three organs or the three parts which originate from the epimere. Okay guys, within 16 to 18 hours of after fertilization at the temperature of 28 degree to 30 degree सेल्सियस एम्ब्रियो हैच आउट. तो हैचिंग हमारी कब होती है? कीप इन माइंड, हैचिंग हमारी हो जाती है 16 to 18 आवर्स में. हमारी जो कार्ब्स हैं उनमें हमारी हैचिंग 16 to 18 आवर्स में हो जाती है जब हमारा टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है. देन टू मैकेनिज्म्स आर देयर, मैकेनिकल एंड कीमोजाइमेटिक एंड मैकेनिकल. जो हमारा मैकेनिज्म है वो प्रेजेंट होता है इन दोनों इन प्रोसेस में. जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है और हैचिंग आउट प्रोसेस है उसमें हमारा इन्वॉल्व होता है. सो मैकेनिकल प्रोसेस क्या होती है? एनवेलप ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर और सिक्रेटेड 1 hour बिफोर द हैचिंग. सो मैकेनिकल कैसे होगा? हम जब उसमें प्रेशर लगाएंगे तो जो हमारा हैच आउट होगा वो 1 hour बिफोर हैचिंग ही हो जाएगा. जबकि एंजाइम शो बोथ कोरियोलिटिक एंड प्रोटियोलिटिक एक्टिविटीज़. कोरियोलिटिक एक्टिविटीज़ क्या है? वो कोरियोनेज एंजाइम जो होता है वो इफेक्ट करता है हमारे कोरियन को टूटने में, जिसके थ्रू हैचिंग होगी हमारी. हैचिंग विद द यॉक सैक अटैच टू इट्स बेली इज कॉल्ड ए सैक फ्राई. सो सैक फ्राई आप समझ गए होंगे कि हमारी जो फिश है उसका जो लार्वा है या जो हैचिंग है, स्पॉन है, वो अगर यॉक के साथ प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे? यॉक सैक फ्राई. ओके गाइस. देन द पिगमेंटेड आई सीन आफ्टर अ 12 hour. कीप इन माइंड, पिगमेंटेड आई हमारी कब सीन होती है? आफ्टर 12 hours ऑफ हैचिंग. एवरेज लेंथ ऑफ हैचिंग ऑफ रोहू इज 3.78 to 4.63 mm एंड कतला इज 4.2 to 5.3 mm. सो हैचलिंग्स का जो साइज़ है वो रोहू में इतना होता है एज यू कैन सी, एंड द मृगल एंड कतला. इन सबसे ज़्यादा किस में होता है? हमारा कतला में होता है, 4 to 5.3 mm. Then after 12 hour, irregular movement is seen. After 24 hour, zigzag movement is seen. 48 hours, horizontal movement is seen. 24 hours. After that, pectoral fin is developed. Then the 72 hours, dorsal and ventral fin is and caudal fin appears. 78 hours. It should be 98 hours. Mouth, stomach and intestine gill covered with the operculum are seen. It is 48 hours guys. 48 hours के आफ्टर हमारा माउथ, स्टमक एंड हमारे जो अदर इंटेस्टाइन गिल कवर्ड है वो सब हमारा दिखने लगता है. आफ्टर 27 hours के बाद, याद रखिएगा गाइस, 27 hours के बाद जो है हमारा यॉक सैक अब्जॉर्ब हो जाता है. यानी कि आफ्टर 3 days हमारा जो यॉक सैक है वो एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा तरह से. फनल शेप नेट are used for collecting the spawn, which is shooting net, and the velocity of current should be 0.5 to 3 km/hour in the when we catch the spawn from the river or natural waters. Then next is Bandh is a seasonal and perennial tank location at the slope of catchment area. So in this we will be talking about the how the breeding is started in Bandh and who started the Bandh breeding. So Bandh is a seasonal and perennial tank located at the slope of catchment area. So Bandh क्या है? हमारे जो perennial या seasonal जो catchment area के पास जो हमारा slope हम बनाते हैं टैंक टाइप के, उन्हें क्या कहते हैं? बंद. ड्राई बंद, ड्राई इट्स रिमेन ड्राई ड्यूरिंग अ समर सीजन. सो समर सीजन के टाइम पे पूरा ड्राई रहता है. जन वेट बंद, ब्रूड स्टॉक कैन बी रेयर्ड इन सेम टैंक पेरिनियल. सो ये वेट बंद क्या है? यहाँ पे हमेशा पानी का जो हमारा फ्लो है वो हमारा बना रहता है. तो यहाँ पे हम ब्रूड स्टॉक को भी हम रेयर कर सकते हैं. देन द fish farmer of Bankura and Midanpur district of West Bengal, another version of dry band called as Bangla band. So जो हमारे बंकुरा और मिदानपुर के जो वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल स्टेट में जो ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारा दूसरे जो ड्राई बंद का एक फॉर्म दिया या वर्जन दिया वो हमारा क्या कहलाया?
बांग्ला बंद, डिजाइंड एंड ऑपरेटेड बाय फिश फार्मर ऑफ मोगरा विलेज इन वेस्ट बंगाल। कॉन्सेप्ट ऑफ बर्न ब्रीडिंग हमारा जो मेजर कार्प का है वो ओरिजिनेटेड हुआ था प्राइवेट फार्म से, एंड मनु तेली इज अ फार्मर इन 1882 डिस्क्राइब्ड अबाउट द बर्न ब्रीडिंग। सो बर्न ब्रीडिंग जो है वो हमारा मेनली MP एंड द वेस्ट बंगाल से हमारा स्टार्ट हुआ था बेसिकली। अगर पूछा जाए तो ये दोनों स्टेट जो हैं वो मेनली हमारा बर्न ब्रीडिंग में इंक्लूडेड हैं, और हमारे यही दो स्टेट है जहाँ से हमारा बर्न ब्रीडिंग मेनली स्टार्ट हुआ था। बर्न आर ऑपरेटेड फ्रॉम मार्च टू अगस्त एंड 20% ऑफ ब्रूडर आर इंजेक्टेड विद द पिट्यूटरी। सो पिट्यूटरी हमारा जो है वो 20% जो है हमारे ब्रूडर्स, उन्हें हम पिट्यूटरी, उस टाइम पे हमारा पिट्यूटरी ही दिया जाता था। सो मार्च से अगस्त तक ये हमारे बर्न ब्रीडिंग चलती थी। फिंगरलिंग इनिशियली केप्ट under the quarantine condition for 2 to 3 months to avoid the entry of unhealthy or diseased fish to the hatchery system. Size of pond for brood fish should be 0.2 hectare to 0.5 hectare. Keep in mind guys, हमारे जो IMC है उनके ब्रूड स्टॉक के लिए या ब्रूड फिश के लिए हमारा कितना हेक्टेयर का हमारा पॉन्ड होना चाहिए? 0.2 हेक्टेयर टू 0.5 हेक्टेयर। वाटर डेप्थ शुड बी 1.5 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ब्रूड स्टॉक के लिए। स्टॉकिंग रेट शुड बी एट द रेट ऑफ 1500 kg पर हेक्टेयर। 1500 kg पर हेक्टेयर हमारी स्टॉकिंग रेट होनी चाहिए। देन स्टॉकिंग रेशियो शुड बी 3:2:2:1। ये हमारा पूछ सकते हैं कि हमारा ब्रूड स्टॉक के लिए फिश के लिए जो हमारा स्टॉकिंग रेशियो है कतला, रोहू, मिगल, ग्रास कार्प एंड सिल्वर कार्प का, वो हमारा कितना होना चाहिए? सो 3:2:2:1। Then irrigate predatory and unwanted fish by application of bleaching powder and urea at the rate of 100 to 125 kg per hectare after 12 hours to 24 hours. Okay guys, 12 आवर्स या 24 आवर्स के बाद ये हमारा देना चाहिए हमें। अगर हमें प्रेडेटरी फिशेस जो अनवांटेड फिशेस हैं उनको कैसे हमें हटाना है? एप्लीकेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड यूरिया इज़ यूज्ड। देन क्लोरोनामाइज हाईली टॉक्सिक होता है तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा कंटेन अबाउट 30% ऑफ क्लोराइड इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 150 to 250 kg पर हेक्टेयर इन पॉन्ड्स। सो हमारा ब्लीचिंग पाउडर भी हम यूज़ कर सकते हैं। Bleaching powder is also used at the rate of 150 to 250 kg per hectare in a pond. Kills the fishes within a 15 to 25 minutes. Only within a 15 to 25 minutes आपका because of bleaching powder the fishes can be killed. The unwanted fishes can be killed. Then here you can see the dose of cow dung. Okay guys, common organic manure अप्लाइड इन द पॉन्ड शैल बी रॉ काउ डंग। सो रॉ काउ डंग हमारा यूज़ करना चाहिए अगर हमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना है, तो एज अ काउ डंग हम यूज़ कर सकते हैं। सो एट द रेट ऑफ 5 to 10 tons पर हेक्टेयर बिफोर द स्टॉकिंग इट कैन बी डन। सो हमारा किस बेसिस पे हम डोज डिसाइड करेंगे हमारे काउ डंग का? तो हमारा जो pH है वो 4 से 4.5 होगा तो हम 1000 kg डालेंगे। देन 4.5 to 5.5 होगा 700 kg डालेंगे। ये काफ़ी बार पूछा जाता है गाइज एग्जाम्स में। सो कीप इन माइंड डोज ऑफ काउ डंग, हाउ मच डोज शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द pH। सो 5.5 to 6.5 500, 6.5 to 7.5 200। ओके गाइज, देन अब बेस मैन्योर हमारा कितना होना चाहिए? 1 to 2 tons पर हेक्टेयर बेस्ड ऑन द प्लैंकटन प्रोडक्शन। प्लैंकटन प्रोडक्शन के बेसिस पे हमारा ये होना चाहिए। Inorganic fertilizer requirement is calculated based on the content of nitrogen phosphorus of the pond soil. So pond soil की जो हमारी phosphorus और nitrogen की content है उसके basis पे हम inorganic fertilizers हमारा calculate करते हैं। Phosphate fertilizers most important in controlling the productivity of fish pond. So phosphate जो है हमारा most important nutrient है for the productivity of fish ponds. For phytoplankton species, nitrogen phosphorus carbon ratio should be 16:1:106. Keep in mind guys, ये पूछ सकते हैं कि प्लैंकटन स्पीसीज के लिए हमारा नाइट्रोजन फॉस्फोरस और कार्बन का रेशियो कितना होना चाहिए? सो इट्स आंसर शुड बी 16:1.
sorry 16:1:106. Okay guys, potassium fertilizer should be applied at the rate of 40 kg per hectare in a split doses, not in a single dose. It should be in a split doses. So 40 kg है तो हमारा 10 kg करके हम 4 बार में डाल सकते हैं. Then the water quality for brood raising ponds. So water quality कैसी होनी चाहिए? So here you can see temperature should be 25 to 30 degrees Celsius. Color should be greenish. Turbidity should be 8 to 12 centimeter. And the nitrate nitrogen should be 0.08 to 0.5 mg per liter. Nitrite nitrogen should be less than 0.0. Keep in mind guys, nitrite, ammonia and phosphorus are in a somewhat nitrite and the ammonia should be in less than 0.01 mg per liter. ये अगर आपको दोनों याद करने हैं तो आप एक याद कर लीजिए, आपका दोनों का काम हो जाएगा. नाइट्रेट और अमोनिया कितना होना चाहिए? सो 0.01 mg पर लीटर हमारा होना चाहिए. इससे ज़्यादा होगा तो हमारी फिशेस पे ये अफेक्ट करेगा, उसकी हेल्थ पे अफेक्ट करेगा एंड द डिसीजेज विल बी देयर. फॉस्फोरस शुड बी 0.1 to 1 mg per liter. Then the iron should be less than 0.5 mg per liter. Manganese less than 0.3 mg per liter. Then the pH should be 7.8 to 8.4. somewhat neutral pH होना चाहिए हमारा, और towards the base हमारा होना चाहिए pH. Total alkalinity should be 80 to 150 mg per liter. Total ammonical जो हमारा नाइट्रोजन है वो 0.2 to 1.2 mg ही होना चाहिए. फीडिंग कैन बी डन एट द रेट ऑफ 2 to 3% ऑफ बॉडी वेट. जब हमारा ब्रूड स्टॉक का हम फीडिंग कराते हैं गाइस तो हमारा कितना होना चाहिए? 2 to 3% हमारा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और डेली बेसिस पे हमारे डेली इन वंस कराना चाहिए, यानी कि दिन में एक बार कराना चाहिए डेली. देन द फिशेज हैव ब्रीड एटलीस्ट वंस इन अर्लियर ईयर हैव बीन प्रूव बेटर ब्रीडिंग वर्कर. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारा जो फिशेज़ है वो अगर एक बार पहले ही अर्ली ईयर में हमारा ब्रीडिंग हो चुकी होगी उसकी, तो वो हमारा ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा प्रोफेशनल ब्रूड स्टॉक कहलाएगा. सो दीज ब्रूड स्टॉक आर कॉल्ड एज प्रोफेशनल ब्रूड स्टॉक. देन द स्टॉकिंग डेंसिटी शुड बी 1000 kg पर हेक्टेयर, और इट शुड बी 1500 kg पर हेक्टेयर होनी चाहिए. 25 to 30% हमारा वाटर जो है पॉन्ड का वो एक्सचेंज होना चाहिए और रिप्लेनिश होना चाहिए. 25 to 30% याद रखिएगा गाइस, हमेशा रिप्लेस होना चाहिए हमारा. देन एटलीस्ट वंस इन अ मंथ फ्रॉम जैन टू मार्च. स्पॉनर आर सिलेक्टेड एंड रियर एटलीस्ट फॉर 5 to 6 months बिफोर ब्रीडिंग. सो 5 to 6 months पहले ही हमारे जो ब्रूडर हैं सिलेक्ट करके हमें उन्हें एक तरह से रियर करना है और उन्हें एक तरह से क्वारंटाइन और कंडीशन अच्छी रखनी है उनकी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and comment on my video, and please do watch whole video.